Okay, so very good afternoon to all of y'all. How are y'all guys? और क्या आप लोगों ने कल का होमवर्क किया है? मैंने आपको बोला था एक डिफरेंशिएशन आपको लिख के आना है. Did you all do your homework? आपको याद है कल मैंने कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट और वेगरिंग अग्रीमेंट का डिफरेंशिएशन लिखने बोला था. क्या आप लोगों ने ये डिफरेंशिएशन लिखा है? Am I audible and visible? Please let me know. Good afternoon, everyone. Oh, media is off. Okay. I'll just turn on the media. Good afternoon, everyone. I'm good, Gayatri. Thank you so much. How are you all? I've turned on the media. I forgot to turn it on. I switched it on right now. You all can send me your homework on the group. Hello, everyone. Okay. Till the time you all are sending your homework sheets, what I'll do is I will revise unit number 6. Unit number 6 दो हिस्सों में divided है, contingent and quasi contracts. अरे मीडिया को ऑन किया है बेटा मैंने. So no, till the time you all are sending your homework sheets, I will revise whatever I have done yesterday. Yesterday I had done the first part of unit number 6, which was relating to contingent contracts. So what do you mean by contingent contract? आप लोग जानते हो any contract, okay, any contract जिसका performance is dependent upon the happening or not happening of a future uncertain event is known as a contingent contract. वापस से सुनो मेरी बात. Any contract का performance, so basically the performance of the main contract is dependent upon the happening or not happening of a future uncertain event. Such a contract is known as a contingent contract. हमेशा याद रखना contingent contract में एक main event होता है और एक होता है collateral event. Collateral is the one which may or may not happen. जिसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे मेन कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा या मेन कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं होगा. Both the parties are interested in the performance of the main contract. Contingent contracts are valid in the eyes of law. It is not a game of win and lose which happens in case of a wagering agreement. Contingent contract में, my dear friends, both the parties are interested in the performance of the contract, and that is the reason why such contracts are allowed in the eyes of law. Now time may be fixed or time may not be fixed. If time is fixed, performance of the main contract may be dependent upon the happening or not happening of the future uncertain event. Similarly, time may not be fixed और उसमें भी performance of the main contract may be dependent upon the happening or non-happening of this future uncertain event. जो भी आपके contract के terms है, अगर वो fulfill हो जाता है, then the contingent contract can be enforceable. Then it can be enforceable. Getting this or no, my dear friends? Now we are moving on to the next part of this particular unit, and that is quasi contracts. Quasi contract की बहुत हल्की सी झलक मैंने आपको यूनिट नंबर 1 में दी थी जब मैंने आपको टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ाए थे.
टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में मैंने आपको बताया था, एक होता है एक्सप्रेस और एक होता है इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, इंप्लाइड नेचर में मैंने आपको बताया था इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स। क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कॉसी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हमने क्या क्या पढ़ा है? कैन यू ऑल टेल मी? थोड़ी सी झलक मैंने कॉसी कॉन्ट्रैक्ट की आपको दी थी यूनिट नंबर 1 में। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है आपको क्या याद है कॉसी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड? और मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था कॉसी कॉन्ट्रैक्ट का, क्या तुम्हें याद है? क्या आप लोग मुझे बता सकते हो? आई एम वेटिंग फॉर आंसर्स। कॉसी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड आपको क्या याद है? गायत्री, आई एम जस्ट इन लव विथ योर हैंडराइटिंग यार, कितनी ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग है आपकी, बहुत अच्छा। श्रुति, इवन योर प्रेजेंटेशन इज वेरी नीट एंड क्लीन। Okay. Good to see your homework. And you all know na that you all are only supposed to write with a black ball pen in the examination. अभी आप लोग ग्रीन, ब्लू, पिंक सब यूज कर रहे हो, रेड भी यूज कर रहे हो, अभी के लिए ठीक है, till the time it is your homework, but for the examination you all are only supposed to write in black ball pen. Okay? हाँ, तो मुझे जवाब आ गए हैं, बहुत सारे बच्चों ने मुझे जवाब दिए हैं, वेरी गुड। कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स आर सच कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर क्रिएटेड बाय लॉ, दे आर इम्प्लाइड बाय लॉ। सो वेरी गुड श्रुति, मुस्कान, कनक, कशिश एंड निशांत, वेरी गुड। दीज आर द फ्यू स्टूडेंट्स जिन्होंने सबसे पहले एकदम सही जवाब दिया था, एंड वेरी नाइस, यू ऑल आल्सो एबल टू कोट द एग्जांपल दैट आई हैड गिवन यू ऑल, एंड दैट वाज द फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। तो अच्छे से सुनते हो आप लोग मेरी बात, गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल, अच्छे बच्चे हो आप लोग, बहुत आगे जाओगे। कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स एक पीपीटी है, उसी पे आना चाहती हूं मैं। ओके, प्लीज एक्सक्यूज मी, ओके, बिकॉज आई एम हैविंग टी, बट इट इज रियली नीडेड टू मी। सुनो ना मेरी बात, Quasi contracts are those contracts which are implied by law. Those are the contracts which are created by law. ऐसा नहीं हुआ था कि दोनों पार्टीज आई थी एंड दे एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। हालात कुछ ऐसे थे जिसके वजह से कानून ने खुद अपने एक्ट में ही लिखा है, अगर ऐसी सर्कमस्टेंसेस आती है आपको अब ऐसे सर्कमस्टेंसेस में ये सारी ड्यूटीज पूरी करनी होती है। एंड डोंट वरी, जरूर बिकॉज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ लॉ वी आर पुटिंग सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन यू, साइमल्टेनियसली वी विल ऑल्सो गिव यू सर्टेन राइट्स। तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में अब ये आपकी ड्यूटीज है और ये सारे आपके राइट्स है। सच काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर नोन एज कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स। सो बेसिकली दे आर नॉट इवन एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर एंटर्ड बाय द पार्टीज, दीज आर इम्पोज्ड बाय लॉ। कानून आपके ऊपर कुछ ऑब्लिगेशंस डालता है और कहता है इन सर्कमस्टेंसेस में अब ये सारी चीजें करना आपकी जिम्मेदारी है, और क्योंकि आपने ये सारी चीजें करी है we will also give you all these rights. Such contracts are known as quasi contracts. So they are not intentionally entered by parties, but in fact it is created by law. And law imposes certain obligations on you, and because it is imposing certain obligations on you, simultaneously it is also giving you certain rights. So basically it is based on the principle of equality.
that no one should enrich himself at the expense of another. Such contracts are known as quasi contracts. Such contracts are known as quasi contracts. यही quasi contracts जो है एक्ट में दिए गए हैं अंडर 5 डिफरेंट सेक्शंस. सो बेसिकली 5 सर्कमस्टेंसेस में the lawmakers have imposed a certain kind of obligation on you, and it will be said as if you are under a quasi obligation. Let us look into all these 5 cases of quasi contracts. सबसे पहला पॉइंट देखिए, claim for necessaries supplied to a person incapable of contracting. So you know कौन कौन लोग incapable होते हैं of entering into a contract. Say for example a minor, a person of unsound mind, or a person disqualified by law. Disqualified by law का example हो सकता है an insolvent person. अब suppose आपने किसी person की behalf पे contract enter किया है and that person check. Are the lectures lagging? सुनो ना मेरी बात. आपने क्या किया है? You have entered into a contract on behalf of a person who is not capable of entering into a contract. तो say for example, यहां पे देखो ना क्या हुआ है. दो दोस्त है राजा और रानी. दो दोस्त है राजा एंड रानी. अब राजा जो है उनके लाइफ में बस दो ही व्यक्ति है एंड दैट इज his mother and father, and both the mother and father are dependent on Raja. So basically they are very old, they are mentally challenged, physically weak, और इन माता पिता के लिए राजा के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है. Now Raja and Rani, they are very close friends. Okay, they are close friends. Okay. Unfortunately एक दिन क्या हो जाता है, राजा meets with an accident and he is in coma. Raja meets with an accident and he is in coma. So now there is nobody to take care of Raja's mother and father, who were totally dependent on Raja for their livelihood, because they are mentally sick, they are physically weak, ज्यादा कुछ अब याद आता नहीं है, एज हो गई है, एंड यू नो ऑल द थिंग्स दैट आर एसोसिएटेड विद एज फैक्टर. और उनका इस दुनिया में राजा के अलावा कोई नहीं था. एंड अनफॉर्चुनेटली राजा ऑल्सो मेट विद एन एक्सीडेंट एंड नाउ ही इज इन द हॉस्पिटल इन द कोमा. सो ही इज नॉट कॉन्शियस एट ऑल, ही इज अनकॉन्शियस. अनकॉन्शियस मतलब उन्हों बेहोश है. ऐसे समय पे ऑब्वियसली नाउ रानी कम्स टू हेल्प Raja's mother and father. And till the time Raja was hospitalized, Rani takes care of Raja's mother and father. तो उनका food हो, shelter हो, clothing हो, medicines हो, ये सारी चीजों का ख्याल जो है वो रानी रख रही है on behalf of Raja. Fortunately देखो कभी कभार good luck आता है काम में. राजा ठीक हो जाता है and now he is fully normal. So he is recovered from all the ill health that he was facing because of that accident. अब देखो, now as soon as Raja comes back, he again starts to take care of his parents. Question ये arise होता है कि जब राजा एब्सेंट थे, मतलब जब राजा हॉस्पिटलाइज थे एंड व्हेन ही वाज इन कोमा एंड रानी हैड टेकन ऑल ड्यू केयर ऑफ हिज पेरेंट्स, उसके लिए ऑब्वियसली बात है खर्चा तो हुआ ही होगा.
फूड के ऊपर खर्चा, मेडिसिन के ऊपर खर्चा, तो ये सारे खर्चे जो है विच रानी बोन फॉर द नेसेसिटीज ऑफ राजाज मदर एंड फादर, कैन शी आस्क द अमाउंट फ्रॉम राजा? देखो मॉरली वो पैसे पूछेगी या नहीं पूछेगी, दैट इज अ डिफरेंट इशू. हो सकता है मॉरली, ओके मॉरली, क्योंकि राजा एंड रानी दे आर फ्रेंड्स फ्रॉम देयर चाइल्डहुड, तो ऑब्वियस सी बात है इवन शी हैड अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर राजाज मदर एंड फादर. तो मॉरली रानी राजा से ये पैसे पूछेगी या नहीं पूछेगी इज अ टोटल डिफरेंट एस्पेक्ट. I am teaching you law. Law is not equal to morals, okay? Legally, can Rani ask this amount from Raja is my question to you. Come on, tell me. Can Rani recover the amount of expenses that she had borne on Raja's mother and father for their necessities when Raja was not there? Can she do that? So the answer to this question is, my dear friends, yes. Though there was no contract between राजा एंड रानी. क्या राजा और रानी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि कल जाके अगर मैं नहीं रहता हूं या मैं कहीं चले जाता हूं या मुझे कुछ हो जाता है तो तू मेरे माँ बाप का ख्याल रखना? क्या ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट राजा और रानी के बीच में हुआ था? नहीं हुआ था. बट नाउ शी डिड इट ऑन हर ओन बिकॉज शी वॉन्टेड टू डू इट. बट फिर भी कानून उसको एक अधिकार देता है और राजा के ऊपर ऑब्लिगेशन डालता है कि हे राजा देखो, आपके एब्सेंस में रानी ने आपके माता पिता का ख्याल रखा है. नाउ यू आर अंडर एन ऑब्लिगेशन टू रीएम्बर्स दिस एक्सपेंसेस टू हर. इट इज योर ड्यूटी and her right to claim this payment. So this will fall under the first category of quasi contract, and that is claim for necessary supplies to persons incapable of contracting. Yes or no, guys? Yes. ये सेम टू सेम पॉइंट मैंने आपको माइनर से रिलेटेड जब कॉन्सेप्ट पढ़ाया था यूनिट नंबर 3 में, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, तब भी मैंने आपको बताया था कि जैसे अ माइनर इज ऑल्सो अ पर्सन हु इज नॉट कैपेसिटेटेड टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. आपने किसी माइनर को माइनर के बिहाफ पे कुछ खर्चा उठाया है, so you can recover that amount from the minor, obviously not personally but from his estate. Okay, but this is only for the necessaries that you have supplied: food, shelter, clothing, education and health facilities. Okay, next point. Payment by an interested person. A person who is interested in the payment of money which another is bound by law to pay and who therefore pays it is entitled to be reimbursed by the other. आप समझने की कोशिश करो, some other person is bound to pay by law a certain amount. But because you are an interested person, you made the payment. Later on, you will be entitled for the reimbursement from the other person. I will give you an example. देखो यहाँ पे क्या हुआ है. There is a house, और इसी हाउस का ओनर मिस्टर ए है. बट ए ने ये जो घर है रेंट पे दिया है मिस्टर बी को. सो बेसिकली ए इज द लैंडलॉर्ड. is the landlord and B is the possessor. Possessor matlab he is the tenant of this particular house. He is staying in this house. Okay, इस घर में मिस्टर बी रह रहा है, बट क्या ये घर बी का है? नो, इट इज ओन्ड बाय ए हु इज द ओनर ऑफ दिस पर्टिकुलर हाउस. सो ए इज द लैंडलॉर्ड एंड बी इज द टेनेंट. अब देखो क्या हुआ है, ये जो घर है इसके कुछ टैक्सेस पे करना पेंडिंग है. ये जो घर है, जिस घर का ओनर ए है और जिस घर का पोजेसर बी है, इस घर के कुछ टैक्सेस देना पेंडिंग है. से सम म्युनिसिपल टैक्सेस आर पेंडिंग टू बी गिवन टू द ऑथोरिटीज. अब देखो नोटिस आ जाती है इसी घर के एड्रेस पे जहां पे बी रह रहा है कि आपने ये म्युनिसिपल टैक्सेस नहीं दिए हैं, और अगर आप ये टैक्सेस नहीं देते हो गवर्नमेंट विल गेट द राइट टू सेल दिस हाउस एंड रिकवर द टैक्सेस. नाउ बी इज एन इंटरेस्टेड पर्सन. बी इज
an interested person. Why is B an interested person? Why is B an interested person? Because he is living in this house. वो सोचता है कि अगर A ने म्यूनिसिपल टैक्स नहीं दिया तो A से तो ज्यादा मुझे नुकसान है, बिकॉज नाउ आई एम स्टेइंग इन दिस हाउस विथ माई फैमिली. आई विल पे द टैक्सेस ऑन बिहाफ ऑफ A और बाद में मैं A से रिकवर कर लूंगा, वो छोड़ दो, वो बाद की बात है. बट फिलहाल गवर्नमेंट के तो ड्यू सेटल कर लू. तो इसीलिए यही सोच रखते हुए B ने क्या किया है, B पेड द टैक्सेस टू द गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर A. टैक्सेस किसको देने चाहिए थे? ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी हु इज मिस्टर ए. बट किसने दिए हैं? मिस्टर बी ने दिए हैं ऑन बिहाफ ऑफ ए. आज बी ने ये टैक्सेस गवर्नमेंट को दे दिए हैं. लॉ मेकर्स कहते हैं, हे बी, यू नीड नॉट वरी. We are putting an obligation of Mr. A that he will be liable to reimburse these expenses to you, and you will get a you will get a right implied by law to recover this taxes that you paid on behalf of A from Mr. A. So now this also falls under quasi contract. So a person who is interested in the payment of money, मेरे एग्जाम्पल में it is Mr. B, which another is bound by law to pay. Who was bound to pay by law? Mr. A. And who therefore pays it. Because this person is interested, he pays it. He is entitled to be reimbursed by the other. By the other means by Mr. A. Yes or no, guys? So this is also a second case which falls under quasi contracts. Yeah. I think the speed is fluctuating and that is why the lecture is lagging now and then. अगर आपको लग रहा है ना लैग हो रहा है, what you do is I will continue teaching. You all can watch the lecture later on once it is uploaded. I'll just check the speed. Speed तो अच्छी खासी दिखा रहा है. I don't know why it is lagging. I'll just check the upload speed. Upload speed भी काफी अच्छी है. Maybe it is fluctuating and that is why it is lagging in between. रिया ने पूछा है मैम रीइंबर्समेंट का क्या मतलब होता है? रीइंबर्स करना मतलब जैसे बी ने ए के बिहाफ पे पैसा दिया है, रीइंबर्स करना मतलब अब बी जो है उसके पास अधिकार रहेगा ए से वो पैसा रिकवर करना जो उसने दिया था ए के बिहाफ पे टू द गवर्नमेंट. सो बेसिकली रीइंबर्समेंट का मतलब होता है कि जितना पैसा मैंने आपके बिहाफ पे दिया है वो पैसा अब मैं आपसे ले रही हूं, उसी को कहते हैं रीइंबर्समेंट. लेक्चर लैग हो रहा है क्या? मतलब जो खर्चा आपने ए के बिहाफ पे किया है उसकी भरपाई करना, हिंदी में उसको कहते हैं रीइंबर्समेंट होना.
Okay. Point number 3, obligation of a person enjoying the benefits, अरे यार, of non-gratuitous acts. Okay, listen. I know the net is fluctuating a lot. So what I'm doing is, I'll continue teaching, okay? मैं 2:30 तक पढ़ा रही हूँ. मेरा ये जैसे ही कॉसी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, I will start teaching. One more concept is remaining in the Indian Contract Act, and that is communication of offer, communication of acceptance, revocation of offer, and revocation of acceptance. Okay, quasi contracts will get over in another 15 minutes, and the remaining topic will take half an hour. To 2:30 tak I will be taking the class, and I will personally request Prasad to get this lecture uploaded as soon as it is possible. If you feel that the lecture is lagging, what you can do is you can watch the uploaded lecture. Okay. I'll just repeat it one more time. What did I say? What I'll do is I will continue teaching you all. कॉसी कॉन्ट्रैक्ट के बस 3 ही पॉइंट्स बचे हुए हैं, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक आखिरी टॉपिक बचा हुआ है मेरा पढ़ाने का, एंड दैट इज कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, रेवोकेशन ऑफ ऑफर, रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, जो मैं ये 3 पॉइंट्स करने के बाद पढ़ाने वाली हूँ. And then I will personally request Prasad to get this lecture uploaded as soon as possible. You all can watch the uploaded lecture, okay? So you need not worry about the lag. It happens sometimes. It is a situation which is beyond my control. Thank you. Okay, point number 3. Point number 3 talks about obligation of persons enjoying the benefits of non-gratuitous acts. Okay, when one person, okay, performed a particular act to another person, expecting to get something in return, my dear friends, the other party has to pay the consideration. So say for example, my dear friends, say for example, हमारे जो नेबर्स है, ओके, हमारे जो नेबर्स है, दैट पर्सन इन आर नेबरहुड, दैट आंटी इन आर नेबरहुड, शी इज अ वेरी गुड सिंगर, शी इज अ वेरी गुड सिंगर. So now I send Gianna to her for some singing lessons. Now she is teaching her to sing, okay, she is teaching her to sing. अब ऐसे केस में ये आंटी जो सर्विसेज जियाना को दे रही है, obviously she is expecting something in return. Personally we are neighbors is one aspect, but now when she is giving learning, singing lessons to my child, that is professionally, obviously she is expecting something in return from me. So basically what has happened over here is Gianna has enjoyed certain benefits from this auntie. Gianna has enjoyed certain benefits from this auntie. But now when the auntie was rendering services, she was rendering these services expecting her singing fees. So basically these services were not free of cost. She was expecting something in return, the fees in return. I will be obliged to give her her professional singing teaching fees. Okay. So when a person lawfully does anything for another, or delivers anything to him, not intending to do so graciously, मतलब basically out of gratuity. Out of gratuity मतलब उदारता से हमने ये चीजें नहीं की है. We expected something in return, and such other person enjoys the benefits thereof
the latter is bound to pay the compensation to the former in respect of or to restore things so done or so delivered. Another example could be, say for example, there was a shopkeeper, Mr. S, और यही शॉपकीपर को कुछ किराना का सामान शर्मा आंटी को देना था, बट अनफॉर्चुनेटली ये शॉपकीपर का जो बंदा है वो वर्मा जी को ये सारा किराना का सामान डिलीवर कर देता है. अब वर्मा आंटी जो है वो भी सोच रही थी कि अब गर्मी का मौसम चालू है तो गेहूं, चावल, ये सब सामान लाना ही है मुझे. आ गया सामान तो अच्छी बात है, मैं रख लेती हूं. एंड शी कीप्स इट, धूप दे देती है, पाउडर लगा देती है, मस्त कोठी में सारा गेहूं भर के रख देती है. मतलब शी ट्रीट्स इट एज इफ इट इज हर गुड्स ओनली. My dear friends, the goods were intended to be sent to Sharma aunty, but they were wrongfully sent to Verma aunty, and Verma aunty treated the goods as if these goods are her goods. My dear friends, she will have to pay the consideration to the shopkeeper for all the kirana ka saman that she received from Mr. S. उसके ऊपर obligation है और S को right मिलेगा to recover this amount from Verma aunty. Yes or no, guys? Yes. Next point. Point number 4. Responsibility of finder of lost goods. तो ये तो मैंने आपको कहा था. से फॉर एग्जाम्पल कल जाके आप ऐसे इवनिंग वॉक ले रहे थे और आपको किसी की गोल्ड रिंग मिल जाती है. तो ये गोल्ड रिंग जब आपको मिल जाती है तो क्या ये रिंग आपकी हो जाती है? नो माय डियर फ्रेंड्स, दिस डज नॉट बिकम योर रिंग. It is in your possession, but you do not become the owner of that gold ring. In fact, you are called as the finder of these lost goods. As a finder of lost goods, Indian Contract Act आपके ऊपर एक obligation डालता है और ये obligation है to find the true owner of this ring, to find the true owner of these lost goods. ट्रू ओनर को ढूंढने के लिए आपने जो भी खर्चा किया है वो खर्चा आप ट्रू ओनर से रिकवर कर सकते हो. सो बेसिकली आपकी ड्यूटी हो जाती है इस रिंग के ट्रू ओनर को ढूंढने की, और आपको एक राइट भी मिलता है. जो भी खर्चा आपने ट्रू ओनर को ढूंढने में किया है वो खर्चे की भरपाई, जिसको हम कहते हैं रीइंबर्समेंट, आप ट्रू ओनर से ले सकते हो. एंड टिल द टाइम यू डू नॉट फाइंड द ट्रू ओनर, इट इज योर ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स. सो सपोज ये रिंग आपकी होती, ये रिंग का कैसे ख्याल आप रखते, वैसे ही आपको ये ट्रू ओनर के बिहाफ पे रिंग का ख्याल रखना होगा. और एक लास्ट पॉइंट है, एंड दैट इज मनी पेड बाय मिस्टेक और अंडर कोअर्शन. So say for example, A had to pay a certain amount to Mr. B. A को लगा कि उसको A had to pay a certain amount to Mr. B. So A B को पूछता है, hey B, what is the amount that is due from my side to you? What is the amount that is due from my side to you? B कहता है 15,000 rupees. A को लगता है 50,000 rupees. वो कहता है 15,000 rupees. वो कहता है 15,000 rupees. इसको लगता है 50,000 rupees. A wrongfully 50,000 rupees B को दे देता है. देने चाहिए थे 15,000, दे दिए बाय मिस्टेक 50,000. देने चाहिए थे, A owes B 15,000 rupees, गलती से दे दिए 50,000 rupees. So there is amount that is wrongfully paid. What is the amount that is wrongfully paid? 50,000.
minus 15,000 and that is 35,000. क्या पूरे के पूरे 50,000 रुपए बी के हो जाएंगे? No, my dear friends. B will be under the obligation to return the 35,000 rupees that was received in extra by mistake from A. He is supposed to return it back to Mr. A. So rupees 35,000 वापस से B को A को return करने पड़ेंगे. Yes or no, guys? Yes. So this is all about quasi and contingent contracts. Yes or no, guys? Yes. Is the lecture still lagging or are you all able to see it properly? Yes is for what? Are you able to see the lecture properly or yes is for lagging, ma'am? Okay. तो देखो पांच केसेस में कॉसी कॉन्ट्रैक्ट अराइज होता है. 1, अगर आपने किसी इनकैपेसिटेटेड पर्सन के लिए नेसेसरीज का खर्चा उठाया है. पॉइंट नंबर 2, व्हेन यू आर इंटरेस्टेड इन अ पर्टिकुलर पेमेंट and this payment you are not obliged to pay by law, somebody else is obliged to pay this amount, but you pay it on behalf of that particular person. You can later on ask that amount from the other party. तीसरी बात है, when a person is enjoying certain benefits of a non-gratuitous act, okay, means the other party performed a particular act expecting something in return, you are supposed to pay him his consideration. Finder of lost goods does not become the owner of the goods. By operation of law, it becomes his duty to find the true owner and return the goods to him. Simultaneously, he can also get the expenses reimbursed from the true owner to find him. And the last point is, whenever you make a payment by mistake, you get the right of recovering the amount paid by mistake. ये पांचों भी केसेस में लॉ ने आपके ऊपर कुछ राइट्स या ऑब्लिगेशंस डाले हैं. किसी ने पूछा है, मैम वो कॉसी कॉन्ट्रैक्ट के एग्जाम्पल में शर्मा और वर्मा आंटी के केस में क्या शर्मा आंटी सेलर को स्यू कर सकती है? यस, अगर शर्मा आंटी को गुड्स नहीं मिलते हैं तो शी ऑल्सो हैज द राइट टू स्यू द सेलर. ओके, बट मुझे लगता है as soon as the seller will come to know that the goods are wrongly delivered to वर्मा आंटी, he will either ask for the goods, और अगर वर्मा आंटी कहती कि वो चावल को तो मैंने ऑलरेडी धूप दे के पाउडर लगा के रख दिया है, सो ही विल आस्क फॉर द पेमेंट एंड ही विल सप्लाई सेम काइंड्स ऑफ गुड्स टू शर्मा आंटी. सो बेसिकली शर्मा आंटी को स्यू करने की नौबत ही नहीं आएगी. ठीक है. ओके, यस, मिस्टेक को सेलर सही कर देगा. एंड देन इफ शर्मा आंटी ने जो भी किराना का सामान मंगाया था वो अगर उसको मिल जाता है, सो वो स्टेज ही नहीं आएगा जहां पे शी विल हैव टू स्यू द शॉपकीपर. बट अगर वो स्टेज आता है, यस, टेक्निकली शी हैज द राइट टू स्यू द शॉपकीपर बिकॉज शॉपकीपर ने ब्रीच किया है, उसको उसका सामान नहीं दिया है. ओके, और अगर वो रेसिप्रोकल प्रोमिसेस है, सो टिल द टाइम द गुड्स आर नॉट डिलीवर्ड, पेमेंट नीड नॉट बी मेड. सो शी नीड नॉट मेक द पेमेंट. सिंपल. ओके, तो अब इससे हम लोग आते हैं हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लास्ट कॉन्सेप्ट पे, एंड दैट इज रिलेटिंग टू communication of offer, communication of acceptance, revocation of offer and revocation of acceptance, जो मैंने कुछ समय पहले पेंडिंग रखा था फॉर टुडे. आ जाइए यूनिट नंबर 1 पे. कम ऑन. उसके बाद हमारी फर्स्ट एक्ट कंप्लीट हो जाती है, विच इज अमाउंटिंग टू ऑलमोस्ट
50% of your syllabus. Indian Contract Act 1872. I hope you all are enjoying the lectures with me. जितना मजा मुझे आ रहा है आपको सिखाने में, I hope उतना ही मजा आपको भी आ रहा है मुझसे सीखने में. I'm assuming that. I don't know. I hope my assumption is correct. कब आधा बैच खत्म भी हो गया मेरे को समझ में भी नहीं आया. Almost today, half of our batch is done. गायत्री ने पूछा मैम थर्ड वाले केस में ऑलवेज पे करना जरूरी है क्या? नो, इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी टू पे. जो गुड्स आपको रॉन्गली डिलीवर हुए हैं वो आप वापस से रिटर्न कर दो. सो यू डू नॉट हैव टू पे फॉर इट. यू विल पे इट only if you have used it. Okay. ठीक है गायत्री, चलो. Communication of offer, communication of acceptance, revocation of offer and revocation of acceptance. Okay. सुनो मेरी बात. Now I want every one of you all to suspend whatever you all are doing. And sit straight like good children, your eyes and ears open. This is one of the most challenging topics of our whole syllabus. Okay? थोड़ा सा challenging है इसलिए मैंने उसको pending रखा था. But now I think around 12 to 15 sessions are over. So now you all have become a little matured in this subject. And that is the reason why I want to cover it right now. Okay? Yes, today also I'm going to tell you all how I are supposed to write down the answers. Please wait. First, let me finish up. इतने impatient क्यों हो? मुझे ऐसे मैंने realize किया है. Yes, you all are very smart. उस पे कोई doubt नहीं है. But आप लोग बहुत ऐसे impatient हो, restless हो. किसी ने कहा है कि आपको लोगों को, शायद आपके मॉम डैड ने आपको कहा होगा, कोई भी चीज जल्दी 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 जल्दी. हाँ, क्लास कितने बजे? हाँ, नहीं मैम आपने ये छोड़ दिया. नहीं मैम ये नहीं हुआ. नहीं मैम आपने ये नहीं बताया. नहीं मैम वो नहीं हुआ. वेट, थोड़ी सी शांति रखो. शांति. स्टार्ट मेडिटेटिंग. सब कुछ होगा. मैंने पहले दिन आपको कहा मुझ पे भरोसा रखो. चिल, रिलैक्स अ लिटिल बिट. एवरीथिंग इज गोइंग टू हैपन. आज क्लास का लास्ट दिन नहीं है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का आज लास्ट दिन है. आज मुझे पढ़ाना है आप लोगों को, मुझे बताना है आंसर्स कैसे लिखने हैं. बट थोड़ा सा समय दो, पहले ये टॉपिक कंप्लीट कर लूं मैं. अच्छे बच्चे हो ना आप लोग? थोड़ा मुंह बंद रखो और कान खुले रखो. ठीक है? सुनो मेरी बात. आ जाइए. सब बोलते हैं ना आप लोगों को कि आप रेस्टलेस हो. इवन ये चैट से ही मुझे समझ में आ जाता है आप कितने रेस्टलेस हो. अगर आप छोड़ो, ठीक है, कोई बात नहीं. ठीक है, यहां पे आप रेस्टलेस हो, बट ये एटीट्यूड विल नॉट बी हेल्पफुल फॉर ऑल फॉर योर लाइफ. ओके? सो लाइफ में ऐसा नहीं होता कि बोला कि मिल गया, सोचा तो मिल गया. ऐसा नहीं होता है. ओके? यू हैव टू बी पेशेंट, स्पेशली इन योर आर्टिकलशिप. खैर, मुझे लगता है आपका बॉस ही आपको ये सारी चीजें सिखा देगा. मुझे बोलने की जरूरत नहीं है. Everything will happen. There is a perfect time for everything to happen. Okay? You have to wait for the right moment. Okay? सब लोग जो हंस रहे हैं ना, मतलब आपको बोला गया है कि आप सच में रेस्टलेस हो. स्टार्ट मेडिटेटिंग और एटलीस्ट स्टार्ट डूइंग प्राणायाम और सम काइंड ऑफ योगा. इट विल हेल्प यू टू बी मेंटली स्टेबल. ओके? And why I'm telling you this is, one thing is being restless, but this restlessness can also sometimes cause anxiousness, which is not good. Especially देखो फाउंडेशन के एग्जामिनेशन में तो आपको 2 पेपर्स तो भी MCQ बेस्ड है. बट आप सोचो द अमाउंट ऑफ प्रेशर दैट यू ऑल विल बी फेसिंग इन CA इंटर. टेक माई वर्ड्स वेरी सीरियसली. ओके? ठीक है, ये सब मजाक में मैंने आपको बोल दिया, बट आई थिंक
you should understand the message that I am trying to convey to you all is something very serious. बोलते वक्त मैंने मजाक में बोल दिया because I don't know, somehow I cannot be strict with my kids. But अगर आपने मुझे सही समझा है, आई थिंक आपकी लाइफ कुछ सुधर जाएगी. आप खुद सोचो, अभी आपका अटेम्प्ट जो है जून में है, जून एंड में, आपका रिजल्ट आते आते अगस्त एंड हो जाएगा, और अगस्त एंड के बाद फिर आप आपकी क्लासेस शुरू करोगे फॉर सीए इंटर. यू विल नॉट इवन हैव कंप्लीट 9 months फॉर सीए इंटर. ओके, एंड देन इन दिस 9 months आपको 4 मतलब 8 सब्जेक्ट की क्लासेस, ग्रुप 1 4 सब्जेक्ट्स, ग्रुप 2 4 सब्जेक्ट्स की क्लासेस करनी है, सेल्फ स्टडी करना है. 8 भी सब्जेक्ट्स के पेपर जो है दे आर गोइंग टू बी सब्जेक्टिव पेपर्स. कुछ एमसीक्यू का सुहाना सफर नहीं होगा आपको इंटर में. और आप सोचो, एक दिन पहले पूरा सिलेबस रिवाइज करके आपको एग्जामिनेशन देना है. अगर आपका एटीट्यूड इतना ही एंशियस रहेगा, my dear friends, I'm really very afraid, but you will become mentally sick. और हो सकता है उसके वजह से सच में आपको फिजिकली बुखार आने लग जाएगा, या आप जो बोलते हैं ना एग्जाम फीवर आपको आने लग जाएगा. दिस शुडंट बी हैपनिंग. This shouldn't be happening with you. You have to keep your mind and your body calm, okay? You have to be emotionally strong. Otherwise, it's going to be really difficult for you all. आपकी एग्जामिनेशन सिर्फ आप लोगों के बीच में नहीं है, जो अभी आप लोग मेरे साथ क्लासेस ले रहे हो. इट इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया. सो आपको समझना होगा व्हाट इज द प्रोफेशनलिज्म और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी आपको फील करनी होगी. ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. ओके, you really have to be very strong mentally also, physically also, and emotionally also. You cannot let your emotions just capture you. आपके ऊपर आपके इमोशंस ऐसे ही हावी नहीं हो सकते. You have to trust people. You have to wait for the right moment, and you have to do things at the time they are required to be done. Okay? अच्छे बच्चे हो ना आप लोग? Start meditating now. Okay? फिर इतनी मेहनत आप लोग करोगे और एग्जाम के एक दिन पहले आप बीमार पड़ जाओगे. सोचो इतनी मेहनत करके क्या फायदा हुआ. आप खुद सोचो, अगर रिजल्ट ही नहीं आएगा तो मेहनत करके क्या फायदा होगा. आपने इतनी मेहनत की, मैंने इतनी मेहनत की, हम सबने मिलके इतनी मेहनत की है, बट अगर रिजल्ट नहीं आएगा तो फिर कुछ मतलब ही नहीं रहेगा मेहनत करके. फिर लॉकडाउन ही एंजॉय कर लेते थे टुकारागिरी करके. बट हमने डिसाइड किया है ना, नहीं हमें ये सब टाइम पास और लुक्खागिरी नहीं करनी है. वी हैव टू बी सीरियस इन आवर लाइफ. बट ये एटीट्यूड तो तभी फ्रूटफुल होगा इफ वी आर गेटिंग द रिजल्ट्स. सो फॉर दैट यू हैव टू प्रिपेयर योर माइंड. जैसे आप एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यू ऑल्सो हैव टू प्रिपेयर योर माइंड. यू कैन नॉट बी सो रेस्टलेस. यू हैव टू बी काम. यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन, एंड देन यू हैव टू स्पीक फॉर योर सेल्व्स. ओके, ओके. आप हुई थे ना शिवानी बीमार एग्जाम के एक दिन पहले. वही तो मैं आपको बोल रही हूं, बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है कि दे बिकम सिक एंड देन दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल. And then if you are sick, obviously your body does not support you to do your studies. Then you cannot concentrate on your studies. और फिर इतनी मेहनत जब हम लेते हैं, इतनी sacrifices जो हम करते हैं, उसकी वैल्यू पूरी जीरो हो जाती है. क्योंकि लोगों को ये थोड़ी ना दिखता है जो हम मेहनत कर रहे हैं. लोगों को तो सिर्फ आपका रिजल्ट दिखता है. और एक बार आप नीचे गिर गए, बस लोगों को तो मौका चाहिए था आपके बारे में बोलने के लिए, दे दिया आपने ही, आपके हाथों से उनको मौका दे दिया. सो डोंट लेट दैट हैपन टू योरसेल्व्स. ओके, चलो आ जाइए. बिकॉज आई रियली हैव होप्स फ्रॉम दिस बैच. यूजुअली मैं ऐसा कुछ बोलती नहीं हूं, बट 2-3 दिन से आई एम रियलाइजिंग, मैं फिर भी मैंने आज दोपहर तक कंट्रोल करने की कोशिश की, बट देन आई थॉट आई हैव टू टेल दिस टू यू ऑल. ओके, I know there are others also who have told you the same thing, but now it is high time that you should start taking their talks seriously. They are telling it for your own good.
आपके मम्मी पापा ने बोला होगा, मैंने भी बोला होगा. इट इज बिकॉज आई सीरियसली लव यू ऑल एंड आई केयर फॉर यू ऑल एंड आई रियली, मैं दिल से चाहती हूँ कि आप लोग सब ये अटेम्प्ट क्लियर कर जाओ. दैट इज द ओनली रीजन आई एम टेलिंग यू ऑल दिस. चलो, ये टॉपिक शायद से हमारा हुआ था, बट फिर भी मैं वापस से कुछ बताना चाहती हूं. Yes, I want you all to make me proud. Okay. I am giving my 100%. It is up to you. Are you giving your 100%? It is a question that you have to answer to yourselves. Okay. चलो आ जाइए. देखो, आप लोग जानते हो यहां पे क्या हुआ था. ए ने क्या किया था, ए ने बी को एक ऑफर दिया था कि क्या आप मेरी कार 5 लाख में खरीदना चाहते हो. एंड दिस offer was given by a letter. So the letter was posted on 1st of January and it reached Mr. B, the offeree, on the 3rd of January. लेटर लिखा था 1 तारीख को, बट पहुंचा 3 तारीख को. तो अब देखो, माना जाएगा कि ये जो ऑफर है, इट गॉट कम्युनिकेटेड on the 3rd of January. Why the 3rd of January? Because 3rd January is the day when the offeree comes to know about the offer. So basically, when will it be considered that the communication of offer is completed? Communication of offer is completed when the offeree comes to know about the offer. इस example में it is the 3rd of January. अब सुनो मेरी बात. कब माना जाएगा कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट हुआ है? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर तब कंप्लीट होता है व्हेन द ऑफरी कम्स टू नो अबाउट द ऑफर. सेकेंड कॉन्सेप्ट जो है, दैट इज कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस. when will it be considered that the acceptance has been communicated? When will it be considered that the acceptance has been communicated? अब सुनो मेरी बात. ऑफरर ने ऑफरी को लेटर लिखा 1 तारीख को, जो ऑफरी को मिला है 3 तारीख को. ठीक है. अब सुनो, ऑफरी इज टेलिंग द ऑफरर दैट यस, he is interested in this offer, and this particular offeree wrote the letter of acceptance on 5th. Offeree wrote the letter of acceptance on 5th. तो 5 तारीख को ऑफरी कहता है, हे ऑफरर, I am ready to purchase this car of yours for ₹5 lakhs. और इसी 5 तारीख को ऑफरी लेटर को पोस्ट कर देता है. उसने लेटर को पोस्ट कर दिया है. इट मीन्स नाउ इट हैज गॉट आउट ऑफ हिज कंट्रोल. बट अब लेटर 5 तारीख को पोस्ट किया है, ऐसा तो नहीं होगा कि अभी पोस्ट किया है और अगली सेकंड पे ऑफरर को वो लेटर मिल गया. नाउ it will take certain time for the letter to reach the offeror. Letter आया offeror के पास on से 7th of January. अब देखो, एक्ट कहती है communication of acceptance is completed in 2 stages. Communication of acceptance, I will just write it down for you all. Communication of acceptance is completed in 2 stages.
communication of acceptance is completed in 2 stages. As regard the proposer and as regard the acceptor. As regard the proposer, proposer मतलब the offerer, and as regard the acceptor. एक्ट कहती है, हम क्या बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस. कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस. सबसे पहले तो हम कह रहे हैं एज रिगार्ड द ऑफरर, एज रिगार्ड द ऑफरर इट इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड. ऑफरर, ऑफरर मतलब जिसने ऑफर दिया था. व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, व्हेन इट इज पुट इन द course of transmission. So that it is out of the control of the acceptor. हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जो है उसको लॉ मेकर ने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, एज अगेंस्ट द ऑफरर एंड एज अगेंस्ट द ऑफरी. इंडियन लॉ ने कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, एज अगेंस्ट द ऑफरर एंड एज अगेंस्ट द ऑफरी. जहां तक ऑफरर की बात है, कब माना जाएगा कि उसको एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन आ गया है, जब कभी भी एक्सेप्टर अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट कर देता है, सो दैट इट इज बियॉन्ड एक्सेप्टर्स कंट्रोल. इट विल बी कंसिडर्ड एज इफ acceptance has got communicated to the offeror. It will be presumed, assumed, deemed, ऐसा माना जाएगा जैसे कि ऑफरर को इस बारे में पता चल गया है. इससे इफेक्ट क्या होगा अब समझने की कोशिश करो. ऑफरर की साइड से अब उसका ऑफर चले गया है और उसके साइड से अब एक्सेप्टेंस मिल चुका है, ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल चुका है. अगर ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल चुका है फ्रॉम द साइड ऑफ द ऑफरर, माय डियर फ्रेंड्स, नाउ द ऑफरर कैन नॉट रिवोक हिज ऑफर. नाउ द ऑफरर कैन नॉट रिवोक his offer. Now revocation is not possible because offer को acceptance मिल चुका है. But as far as the acceptor is concerned, as far as the acceptor is concerned, एक्ट कहती है एक्सेप्टर के लिए माना जाएगा communication of acceptance will be completed when it actually comes to the knowledge of the proposer. When it actually comes to the knowledge of the PRO proposer या तो offeror. When it actually comes to the knowledge of the offeror. So say for example 5 तारीख को
ऑफरी ने मतलब एक्सेप्टर ने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को पोस्ट किया जो ऑफर और के पास एक्चुअली 7 तारीख को पहुंचता है। तो जब 7 तारीख को ऑफर और के पास ये लेटर पहुंचा उस तारीख को माना जाएगा नाउ द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज फार एज द एक्सेप्टर इज कंसर्न्ड। तो देखो इस तरह से लॉ मेकर ने इस चीज को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। अगर मैं एग्जाम्पल दूं उस एग्जाम्पल के हिसाब से क्या आप मुझे बता सकते हो, उस एग्जाम्पल के हिसाब से क्या आप मुझे बता सकते हो एज रिगार्ड द ऑफर और communication of acceptance will be completed on the 5th of January, and as regard the acceptor, communication of acceptance will be completed on the 7th of January when this letter comes to the knowledge of the offeror. अब आप लोग जानते हो रिवोक करना मीन्स टू टेक बैक। रिवोक करना मतलब क्या? रिवोक करना मीन्स टू टेक बैक। रिवोक करना मतलब क्या होता है? वापस से बोलो तो रिवोक करना मीन्स टू टेक बैक। नाउ व्हेन कैन, जस्ट 1 सेकेंड, ओके। ओके लिसन टू मी, चेक। हाँ मैं क्या बोल रही थी? आई जस्ट लॉस्ट द ट्रेल। ओके एनीवे सुनो, एक बार ऑफर को एक्सेप्टेंस मिलता है तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। मैं बात कर रही थी रेवोकेशन की। टू रिवोक मीन्स टू टेक बैक। अब कॉमन सी बात है, ऑफर और ने अपना ऑफर दिया है ऑफरी को। कब तक ऑफर और अपने ऑफर को रिवोक कर सकता है? कब तक ऑफर और अपने ऑफर को रिवोक कर सकता है? सो द सिंपल आंसर टू दिस इज जब तक ऑफर को एक्सेप्टेंस नहीं मिलता उसके एंगल से, तब तक वो ऑफर को रिवोक कर सकता है। इन शॉर्ट 5 तारीख को एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हुआ है ऑफर और को, उसके पहले ऑफर को रिवोक किया जा सकता है, उसके बाद ऑफर को रिवोक नहीं किया जा सकता है। सिमिलरली आप इमेजिन कीजिए 5 तारीख को एक्सेप्टेंस का लेटर सेंड किया है ऑफरी ने। अब इसी एक्सेप्टेंस को एक्सेप्टर रिवोक करना चाहता है, उसको कोई दूसरी गाड़ी उसी दाम में मिल रही है जो उससे बेहतर है, अपने एक्सेप्टेंस को वो रिवोक करना चाहता है। तो वो कौन सी तारीख के पहले रिवोक कर सकता है? बिफोर 7th of January एक्सेप्टर कैन रिवोक हिज एक्सेप्टेंस, बिकॉज 7th तारीख को माना जाएगा फ्रॉम द साइड ऑफ द एक्सेप्टर के ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल गया है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। अब कॉन्ट्रैक्ट को रिवोक नहीं किया जा सकता है, फिर उसको ब्रीच माना जाएगा। तो अगर वो अपना एक्सेप्टेंस रिवोक भी करना चाहता है, दिस रेवोकेशन इज ओनली पॉसिबल बिफोर 7th of January. Okay, let us look into this example. एक तारीख को लेटर भेजा जो 3 तारीख को ऑफर लेटर पहुंचा है टू द ऑफरी। उस दिन पे कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर हुआ। 5 तारीख को ऑफरी ने एक्सेप्टेंस का लेटर लिखा और पोस्ट किया। जिस तारीख को एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट किया गया है उसी दिन को माना जाएगा नाउ एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन इज कंप्लीट एज फार एज द ऑफरर इज कंसर्न। अब हमारा ऑफर और ऑफर को रिवोक नहीं कर सकता है। सो देखो, व्हेन डज कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बी कंप्लीटेड एज अगेंस्ट द ऑफरर?
on 5th, that is the day on which the offeree sends his letter of acceptance. And by what time offer can be revoked? Before 5th of January, that is on which acceptance has been sent by the offeree. Getting this or no, my dear friends? और जब मैं एक्सेप्टेंस को रिवोक करने की बात कर रही हूं, देखो यहां पे क्या हुआ, एक्सेप्टेंस को रिवोक करने की बात हो रही है. ए ने बी को लेटर भेजा है 1 तारीख को, 3 तारीख को पहुंचा है, 3 ने एक्सेप्टेंस 5 तारीख को उसने एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट किया है, विच हैज रीच्ड द ऑफरर ऑन 8th. अब देखो, सुनो मेरी बात, ये जो हमारा एक्सेप्टर है उसको कौन सी तारीख के पहले रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का लेटर भेजना होगा? उसको भेजना होगा बिफोर 8th ऑफ जनवरी. वाई बिफोर 8th? बिकॉज 8th को ये एक्सेप्टेंस का लेटर ऑफर को पहुंच जाता है, तब माना जाएगा हमारे ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल गया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बन गया, अब रेवोकेशन पॉसिबल नहीं है. तो इसलिए 8th के पहले आपका रेवोकेशन का लेटर पहुंचना चाहिए. तो हो सकता है आपने टेलीग्राम या स्पीड पोस्ट या फैक्स से भेज दिया, ताकि इमीडिएट बेसिस पे आप आपके एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकते हो. गेटिंग दिस और नो माय डियर फ्रेंड्स? यस, सो दिस इज ऑल अबाउट द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. Now, I wanted to tell you all something about the presentation part. How you all are supposed to answer in the examination. I'll just make the screen white because this is how your paper is. And insert or view ruled lines. Yes. And insert shapes. किसी ने पूछा है व्हाट इफ बोथ द लेटर्स अराइव एट द सेम टाइम, then it will be considered as if revocation has been properly communicated. तो revocation माना जाएगा. ओके, बट आप एग्जामिनेशन में क्या कर सकते हो, नोट भी लिख सकते हो और कह सकते हो वी विल अज्यूम दैट एक्सेप्टेंस वाज ओपन फर्स्ट एंड thus it is been accepted, or revocation was accepted first and thus revocation is valid. आप ऐसा एग्जामिनेशन में नोट लिख सकते हो. ठीक है, okay, now listen to me very carefully. okay, आपके एग्जामिनेशन में आपको जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं
लॉ के एग्जामिनेशन में वो दो ही तरीके से पूछे जा सकते हैं. वन, अ डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन, or two, they could be asked in the form of a case study based question. Okay, so say for example, how to present a question which is a direct theory question. Say for example, इंस्टीट्यूट ने आपको 6 मार्क के लिए एक शॉर्ट नोट पूछा है विच इज अ काइंड ऑफ अ डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन. एंड व्हाट इज दिस क्वेश्चन सेइंग? नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट, कॉमेंट्स प्लीज कॉमेंट. नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट, प्लीज कॉमेंट. नाउ दिस इज अ डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन. ओके, नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट, प्लीज कॉमेंट. दिस इज अ डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन. दिस इज अ डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन. अगर इंस्टीट्यूट ने कोई भी डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन पूछा है, सबसे पहली बात तो यू ऑल नो दैट यू हैव टू राइट डाउन द आंसर नंबर, बिकॉज इफ यू डू नॉट राइट डाउन द आंसर नंबर, दैट आंसर इज नॉट गोइंग टू बी चेक्ड. तो आंसर की शुरुआत करने के पहले यू हैव टू राइट डाउन द आंसर नंबर. ओके, नाउ यू वांट टू राइट डाउन द आंसर टू दिस क्वेश्चन, नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट, कॉमेंट. तो पहले तो आप बताओगे a consideration means something in return. Quid pro quo is the Latin word, and a consideration is one of the essential elements of a valid contract, but now there are certain exceptions to it. तो ऐसे करके आपने introduction दे दिया in 1 or 2 sentences, and then you will write down all the exceptions in point वाइज फॉर्मेट. तो आप लोग जानते हो, इसके लिए मैंने आपको एक मेमोरी टेक्निक दी थी. पास्ट में आपने जो टाइम पास के लिए लव किया था, जिसमें आपको गिफ्ट में बेल मिली थी, अब उसको एजेंट के द्वारा चैरिटी में दे दीजिए. तो पहले तो आपने बता दिया कि कंसिडरेशन का क्या मतलब होता है. एंड फॉर एवरी कॉन्ट्रैक्ट टू बी वैलिड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10, कंसिडरेशन इज एन एसेंशियल एलिमेंट. बट नाउ देयर आर सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच आर वैलिड इवन इफ देयर इज नो कंसिडरेशन प्रेजेंट. जैसे कि सबसे पहले आपने लिखा नेचुरल लव एंड अफेक्शन. So you will give down the heading natural love and affection, and you will start explaining what does this point actually say. फिर point number 2 आप दोगे, say completed gifts, या तो फिर आप लिख सकते हो charity, या तो फिर आप लिख सकते हो bailment और past voluntary services. Past voluntary services. ऐसे करके आप पॉइंट वाइज फॉर्मेट में सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करोगे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, टिल यू कवर ऑल द पॉइंट्स. पैराग्राफ फॉर्मेट में कोई भी सवाल का जवाब आपको नहीं लिखना होता है. No answers are to be written in the paragraph format, even if the module is following that pattern. We do not have to follow that pattern, and we have to be more systematic while we are presenting the answers. So this is the way how you're supposed to write down the answers of a direct theory question. But now let me tell you, my dear students, not all questions are direct theory questions. Some questions are also asked in the way of a case study. किसी ने पूछा है मैम क्या आंसर्स की लेंथ मैटर करती है? देखो, वैसे तो वी कैन नॉट डिफाइन अ पर्टिकुलर लेंथ फॉर योर आंसर्स, बट यस जनरली अगर 6 मार्क्स का सवाल है, सो 6 मार्क्स का क्वेश्चन के लिए आंसर्स जब आप लिखते हो वुड बी अराउंड 8 to 9 sentences. But it is not true for all kind of answers.
some answers may be of shorter length or of more length also, but जनरली 80% आंसर्स ऐसे ही होते हैं कि अगर 6 मार्क का है तो 9 या 10 सेंटेंसेस का आपका आंसर होता है. 4 मार्क का सवाल है तो फिर मोस्टली 7 to 8 सेंटेंसेस का आपका आंसर होता है. ठीक है. नाउ presentation of a case study based question. See if the screen is turning black. Please watch the uploaded lecture. I'm requesting you again and again. There is some fluctuation in the net. I cannot help it. Okay. Sometimes questions are also asked in the form of a case study. तो केस स्टडी में बेसिकली इंस्टीट्यूट क्या करता है, आपको एक सिचुएशन देता है और आपको बोलता है अब आप बताओ इस सिचुएशन में किसको क्या करना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन व्हाट द क्वेश्चन इज. तो केस स्टडी बेस्ड जब क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट पूछती है, यू हैव टू आंसर इन 4 parts. The first part being facts. First part being facts. जैसे कि I will give you a question. इंस्टीट्यूट ने बोला है मिस्टर say for example मिस्टर आहूजा ने एक बहुत फेमस फिल्म स्टार को अपनी डॉटर की एंगेजमेंट प्रोग्राम में बुलाया था, इनवाइट किया था. ओके, इनवाइट किया था बिकॉज दे लिव्ड इन द सेम नेबरहुड. उस बड़े फिल्म स्टार ने हाँ भी कहा था, ऑफ कोर्स मिस्टर आहूजा, आई विल come to your daughter's engagement program, but later on the actor did not turn up. Can Mr. Ahuja sue that particular actor for not coming to his daughter's engagement program because he had made certain special arrangements for that actor? तो इंस्टीट्यूट ऐसा सवाल पूछती है तो अब डायरेक्टली आप हाँ या ना ऐसा जवाब नहीं दे सकते हो. पहले आप फैक्ट्स लिखोगे कि Mr. Ahuja invited a famous movie actor for his daughter's engagement program. Second point में आप क्या लिखते हो? Second point में my dear friends you write down the reference. अब कानून क्या कहता है वो आपको लिखना होता है. तो अब आप बताओगे ऑफर का एक्सेप्टेंस का क्या मतलब होता है और कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है, और फिर आप बताते हो वही अग्रीमेंट, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मेक एन अग्रीमेंट, वही अग्रीमेंट जो लीगली बाइंडिंग है दे टर्न इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. अग्रीमेंट्स ऑफ सोशल एंड डोमेस्टिक नेचर डू नॉट टर्न इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. बेसिकली व्हाट यू डू इन रेफरेंस इज यू राइट डाउन व्हाट इज रिटन इन द लॉ. ध्यान से सुनो मेरी बात, मैं रिपीट नहीं करने वाली हूं. इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. रेफरेंस में आप वो लिखते हो जो कानून कहना चाहता है. रेफरेंस में आप वो लिखते हो जो कानून कहना चाहता है. कानून ने जो कहा है वो आप लिखोगे. उसी से रिलेटेड अगर कोई केस लॉ होगा आप वो केस लॉ का नाम भी यहां पे लिखते हो. थर्ड पॉइंट जो होता है दैट इज द एनालिसिस पार्ट. इसी एनालिसिस पार्ट में आप क्या करते हो? एनालिसिस पार्ट में यू नाउ अप्लाई द लॉ टू द गिवन क्वेश्चन. आप यहां पे कहोगे आहूजा ने इनवाइट करके सिर्फ एक सोशल ऑफर दिया है विच वॉज एक्सेप्टेड बाय दैट एक्टर. यहां पे कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन दोनों के बीच में बाउंड नहीं होता है, विच ओनली मेक्स इट अ सोशल अग्रीमेंट. एंड देन फाइनली आप कंक्लूजन दोगे और कहोगे बिकॉज ऑफ द रीजंस आई हैव स्टेटेड अबव I may conclude or we may conclude that Mr. Ahuja cannot sue the movie actor because there was no legal binding relationship existing between
them. ऐसे करके आप लिखते हो जवाब to any kind of a case study based question. So always remember, my dear friends, no answers are to be written in paragraph format. You either write your answers by way of pointers, or agar case study ho, so you have to divide your answers into 4 parts and you have to write them as facts, reference, analysis, and finally would be your conclusion. Okay? देखो एग्जामिनेशन में ऑर्डर में जाना जरूरी नहीं होता है कि क्वेश्चन 1 पहले, 2 पहले, 3 पहले. अगर आपको लगता है क्वेश्चन नंबर 3 कि सारे आंसर्स आपको बहुत अच्छे से आते हैं, यू कैन स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट. बट नाउ इफ यू आर स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट, यू हैव टू मेक इट श्योर 3 के अगर कोई सब क्वेश्चंस है, all the sub questions are written together. They are written together. Along with that, every question will start on a new page. You also know, my dear friends, that you can only use a black ball pen for your examination. अगर आपने सप्लीमेंट्री शीट्स ली है, प्लीज टाई द शीट्स प्रॉपरली. और आपके फर्स्ट पेज पे यू हैव टू टिक मार्क ऑल द आंसर्स दैट यू हैव रिटन. डोंट फॉरगेट टू टिक मार्क दोज आंसर्स. जैसे ही कोई आंसर की शुरुआत आप करते हो, फर्स्ट टिक मार्क इट ऑन द फर्स्ट पेज एंड देन स्टार्ट राइटिंग द आंसर्स. डोंट फॉरगेट टू राइट डाउन द आंसर नंबर्स. ओके, क्योंकि अगर आपने आंसर नंबर नहीं लिखा है, you have to, my dear friends, lose marks for that answer. Starting से ही आपकी speed होनी चाहिए. Solve 1 to 2 papers before actually going for the examination. It will make you understand where you are lagging. Okay, your handwriting should be reasonably good. Your handwriting should be reasonably good. मैं ये नहीं कह रही हूँ एकदम मोती जैसे अक्षर होने चाहिए, but at least the examiner should understand, okay, what you have written. Why other color pens are not allowed? Because your papers are scanned and are moved forward. Other color pens से बहुत ज़्यादा data consume हो रहा था, heavy files हो रही थी, and that is why only black ball pens are allowed. Okay? किसी ने पूछा जेल पेन अलाउड है या नहीं. लेट मी टेल यू, वैसे तो जेल पेन्स अलाउड नहीं है अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द इंस्टीट्यूट. इंस्टीट्यूट ने स्ट्रेट अवे कहा है ओनली ब्लैक बॉल पेन. बट पास्ट में मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने ब्लैक जेल पेन यूज की थी और कोई दिक्कत नहीं आया था. बट आई वुड स्टिल रेकमेंड, डोंट टेक एनी रिस्क एटलीस्ट फॉर सच अ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन. ओके, सो दिस वुड बी ऑल फॉर टुडे. So we have successfully completed the Indian Contract Act. Thank you very much, my dear friends. I will see you tomorrow. Okay, tomorrow we are going to revise the whole of the Indian Contract Act. सारे के सारे 6 units का detailed revision कल होने वाला है. और साथ ही साथ I think अगर आपने Companies Act के lectures देख ली हो तो उसका भी doubt solving होने वाला है. So see you tomorrow. Bye bye.